ओके, आगे कुछ एंट्रीज है वो डिस्कस करते हैं। ओके, ऊपर की एंट्री वैसे आ गई है। पेट्रोल यूज्ड इन पुलिस व्हीकल्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, आई रिमेम्बर्ड कि वो क्या हो गया था। पेट्रोल यूज्ड इन पुलिस व्हीकल्स included or not included? So Megha, you there? will be included? नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया। ठीक है, मुझे अभी याद आया जब मैं आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो जल्दबाजी में आपको बता दिया था। So it is intermediate consumption. Why? Because the end service or the final service is protection given by the police officers. ये उसका एक intermediate खर्चा है गवर्नमेंट का कि पुलिस वालों को उनकी बाइक में या जो उनकी व्हीकल्स है, कार में, उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज एंड सर्विस इज नॉट प्रोवाइडिंग पेट्रोल, एंड सर्विस इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। Okay, sir. So it will be not intermediate good. It is used for provision of final product, maintenance of law and order by the police. Financial help received by flood victims, included, not included? Sir, not included. Yes. Purchase of machine by a factory? So it will be? Yes. As part of what? Sir, as part of expenditure method, factory maintenance, entry number 3, yes, sir. capital Yes, formation. Investment करना है, capital formation हो गया। जैसे purchase of new taxi by taxi, gross domestic capital formation. Royalty, sorry, नीचे हो गया। It is included. So it will be included because yes, sir, operating surplus का part. Commission on sale of second hand goods. So commission will be included. Because these commissions were provided in the year when these second hand goods were bought and sold. The value of the second hand goods will not be included, but this will be included. आगे this important, dividend received, ये बहुत important है, by an Indian from his investment in shares of a foreign company. ध्यान से देखना। सर सिर्फ डिविडेंड तो इंक्लूड होता है ना नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में? yes, it will be included, income method का पार्ट था। ठीक है ना? yes, it will be included national income as it is factor income from abroad. उसका रीजन क्या है? देखो, वो जो इन्वेस्टमेंट उसने करी है फॉरेन कंपनी में, वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करती होगी। सो इजंट इट लाइक अ लोन? जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उस कंपनी को लोन ही तो दे रहे हो। तो उस पैसे को उन्होंने यूज करा और प्रॉफिट कमाया और उसके रिटर्न में उन्होंने आपको डिविडेंड दिया। सो दिस इज लाइक योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो दिस विल बी इंक्लूडेड। इज अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। So it will be included. So it will be included. Raw material, intermediate goods. फॉर एग्जाम्पल कार के लिए टायर खरीदना, स्टील खरीदना। Okay, sir. No. Yes, sir. नहीं include होगा। Intermediate goods, it will not be included. जैसे ये milk purchase by a sweet shop to make milk cake, not included. Intermediate consumption. ये बहुत important है। Earnings of self-employed doctor having a clinic at his own residence. Think. So होना चाहिए because service to provide हो ही रही है। Exactly. So this will be part of mixed income because वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। ये अगर आपको क्लास 11 में माइक्रो में अगर आपको याद है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपने शायद करा होगा। अगर आपको माइक्रो याद है, इम्प्लिसिट कॉस्ट था उसमें कि फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एम्स में जॉब करता हूँ और मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। अब मैं अपने आप को सैलरी नहीं दे रहा हूँ, बट मेरी सर्विसेज की कुछ वैल्यू तो है। So by working at my own clinic, there is an opportunity cost of my services, which is 50,000 rupees, which I was earning when I was working as a doctor in AIIMS hospital. So 50,000 rupees will be included as an imputed or implicit value. ठीक है? Okay, sir. तो mixed income हो गया।
money received from sale of second hand good, we know this will No, not be sir. included. second hand good है, थोड़ा आगे जाते नीचे ये एंट्री नंबर निकल गया वैसे, फिर भी 29 देखो सेम. Imputed rent of self-occupied house. It will be included as people living in such house enjoy housing service similar to those in rented house. Self-occupied मतलब मैंने जैसे मैंने बोला था वो एग्जांपल, जब मैंने अपना डॉक्टर ने अपना क्लिनिक जब ओपन किया तो उस लेट से कोई टेनेंट था, टेनेंट को निकाल दिया, वो टेनेंट उसको 20,000 रुपये देता था. अब वो अपने ही घर पे क्लिनिक खोल के बैठा, वो अपने आप को रेंट तो नहीं दे रहा है, but had he not been staying, he would have given this house on rent and on let's say 20,000 rupees. So there is an opportunity cost, implicit value of those services. So it will be included Yes, in sir. national income. 31. Wheat grown by a farmer but used entirely for family consumption. Family Sir, no, consumption. because payment नहीं हो रही ना इसके अंदर. But wheat to grow हुआ है, production for self consumption. So then self consumption, okay sir. है ना? इसीलिए the first thing, see आपको ना शायद कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है, बट मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे ही सोचता था पहले जब मैं बच्चा था या मैंने स्टार्टिंग में सीखा कि मैं अपने सामने ना तीनों मेथड ले आता हूँ. इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड. इनकम मेथड जैसे बोला उसने बोला कि मुझे बताइए सेल्फ कंजम्पशन है, यस इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वैल्यू एडेड मेथड. क्लिक कर गया मुझे थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली बार-बार आप एंट्रीज करते रहोगे, देयर आर 70-80 एंट्रीज, बार-बार करते रहोगे, हम और प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे सोचना है. ये एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर बाय द गवर्नमेंट. So it will be included. एग्जैक्टली व्हाई? कैपिटल फॉर्मेशन, Yes. डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. थोड़ा नीचे जाते हैं, 4-5 एंट्री और डिस्कस करते हैं. ये तीनों देखो. वैल्यू ऑफ वुड परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ टेबल. टेबल बनाने के लिए जो वुड खरीदा, नॉट इंक्लूडेड. व्हाई? इंटरमीडिएट वुड है. ठीक है ना? Yes sir. अगेन सेकंड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हेन यू वर डूइंग डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाय अ स्कूल कैंटीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. He has bought, that school canteen owner has bought cold drink for the purpose of reselling it to the consumer, to the children. Yes So sir. again it is an intermediate good. So intermediate goods are those goods, दो entries, दो definition होती है, which are either used for the production of some final good, one, or they are purchased for the purpose of resale. Resell. Yes sir. Transport expenses paid by a firm. अब वो firm कुछ फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इट कुड बी एनीथिंग, गुड्स बेस्ड सर्विसेज, और ट्रांसपोर्ट उसका खर्चा है. सो दिस जैसे पुलिस ऑफिसर वाला था, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनका खर्चा लग रहा है कि बाइक में पेट्रोल डल रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डल रहा है. सिमिलरली एक फर्म के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड सम फाइनल सर्विस और अ गुड. परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री. think equipment for installation in a factory. Again I will ask you to go to the expenditure method. क्या ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? नहीं है. क्या ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? नहीं है. क्या ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है? यस. Yes sir. टूल्स, जब एक फर्म टूल्स खरीदता है, मशीनरी खरीदता है, इक्विपमेंट खरीदता है, मतलब कैपिटल फॉर्म कर रहा है, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है. नेक्स्ट, Yes sir. पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स. Sir, no, because taxes are not included. Exactly, compulsory transfer payment not included. Entertainment tax received, again it's a tax not included. ये वैसे सामने आ गया. Salaries paid to Russians working in Indian embassy in Russia. See, अगर ये डोमेस्टिक इनकम बोलता ना तो मैं बोलता इट इज इंक्लूडेड. आपको अगर डोमेस्टिक इनकम की डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन याद है, दिस विल बी इंक्लूडेड. एंट्री नंबर 4, दिस विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम. व्हाई? बिकॉज इट इज एन इंडियन एम्बेसी, and Indian embassy, no matter which part of the world it is in, it will be included in domestic income, domestic territory of India. But यहाँ पे national income पूछ रहे हैं, और national income में, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया था, national income में हम nationality देखते हैं.
सैलरीज पेड टू रशियंस, वो रशियंस है तो वो कहीं पे भी कहीं से भी पैसा कमाए वो रशिया के नेशनल इनकम में जाएगा, इंडिया के नेशनल इनकम में नहीं आएगा. Yes, sir. इट विल बी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. Capital gain to Indian resident from sale of shares of a foreign company. So capital gains are not included. No, not included because they do not add to the flow of goods and services. ये भी same here. Harish works in USA and sends money to his family in India. Again, not included. It's a transfer income or a transfer payment. Destruction of a building due to earthquake. No, sir. Capital loss. It is not included. ये मैं पूछ चुका हूँ आपसे. देखो, HP uses its own new laptops in its office for self-consumption. This is production for self-consumption. Yet it's included national income. Same. Purchase of truck to carry goods by a production unit. ट्रक खरीदे उन्होंने. तो ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में होगा. एग्जैक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. यस. ठीक है, अब देखो बहुत सारी एंट्रीज जो इंक्लूडेड है ना वो आपको सारी एक्सपेंडिचर मेथड से मिल रही है, एंट्री नंबर 3 से मिल रही है. यस सर. डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कुछ खरीदा है बाहर से. इंक्लूडेड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ने खर्चा करा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके सर. ओके सर. एक्सपेंडिचर मेथड पकड़ के रखो. Earnings from a part-time job in McDonald's by a student. So yes, it will be included. Because productive services rendered हुए चाहे वो part-time Yes, job sir. या full-time job. ये हमें पता है. Receipts from sale of property inherited from a relative not included. एक ना land वाली entry. Entertainment allowance to an, हाँ ये important है. Entertainment allowance to an employee for entering business guest. Entertaining, sorry, business guest. फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है इंडिया में. XYZ कंपनी है और बाहर से कुछ गेस्ट आए बिजनेस गेस्ट, तो एक एम्प्लॉय को लगा दिया कि आप इनको घुमाओगे फिरोगे. ये बहुत कॉमन है. और जो भी खर्चा होगा फिर कंपनी आपको रिबर्स कर देगी, पे कर देगी. तो इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा मुश्किल है. इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिकॉज वो जो कंपनी है उसका काम इज नॉट टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. वो उसका फाइनल सर्विस थोड़ी है. वो किसी बिजनेस डील के लिए या बिजनेस डील कुछ करने के लिए आया है. एज ए कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट है. कंपनी को उसको एक 5 स्टार होटल में ठहराना है, 3-4 दिन उसका ध्यान रखना है, तो वो कॉस्ट है ताकि वो बिजनेस डील हो जाए या वो मीटिंग हो जाए या वो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हो जाए. तो इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी. वो खर्चा करना पड़ रहा है ताकि एंड प्रोडक्ट या तो डील साइन हो जाए, जो भी वो बचता है. ठीक है. Expenditure on purchase of new shares of a company. Shares of a new company again not included. Sale and purchase of financial asset not included. Sorry. Goods lying within the production boundary. These are not included. Goods lying within the production boundary not included because वो क्या हो जाएंगे? The intermediate goods. Yes, intermediate goods. Perfect. ये भी नहीं आएगा. मनी रिसीव बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड अगेन नॉट इंक्लूडेड. ट्रांसफर रिसीट है जो इंटरेस्ट वाले पे जाता है. ओल्ड हाउस पे खर्चा नॉट इंक्लूडेड. परचेज ऑफ रेंटेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय फैक्ट्री ओनर. परचेज ऑफ हाउस बाय टेनेंट. ओके, परचेज ऑफ हाउस बाय अ टेनेंट. व्हाई विल दिस नॉट बी इंक्लूडेड? रीजन लिखा हुआ है बिकॉज जो टेनेंट जिस घर में रहता है अगर वो पहले से उस घर में रह रहा है मतलब वो पुराना घर है. सब खरीदा हुआ है. एग्जैक्टली वो पहले से बना हुआ है. हाँ एग्जैक्टली वो ऑलरेडी एडेड विल नॉट बी इंक्लूडेड. सिमिलरली परचेज ऑफ रेंटेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय फैक्ट्री ओनर. मतलब उसने रेंटेड बिल्डिंग को खरीद लिया है, मतलब वो रेंट पे रहता है, मतलब वो सेकंड हैंड गुड है. या ये इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री. अब जब इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है ना, वो क्या आप उसके रिटर्न में कोई गुड या सर्विस रेंडर करते हो? No, नहीं sir. आपने अपनी प्रोटेक्शन ली थी एज अ बैकअप, सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस ली थी और वो फैक्ट्री में आग लगी कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दिए, उसके रिटर्न में आपने कोई भी गुड या सर्विस नहीं दिया. ये अब ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है.
इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स, बहुत ध्यान से देखना, जो मैंने समझा उसकी उल्टी एंट्री है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स बाय इंडिविजुअल। जब आप अपना पैसा बैंक में डालते हो तो सेविंग अकाउंट में डालते हो तो बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट देता है। जब आप बैंक में एफडी खोलते हो, अपना पैसा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ब्लॉक करते हो, बैंक आपको 6% का रेट ऑफ रिटर्न देता है। विल दिस इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? ध्यान से सोचना, बैंक क्या करता है उन पैसों का, ये सोचना है। सर इंटरेस्ट की जब होगा भी बात आती है, बिकॉज जो बैंक है वो आगे उसको फर्दर लोन में देगा और वो एग्जैक्टली उससे इंटरेस्ट लेगा। एग्जैक्टली, तो बैंक विल यूज योर मनी टू अर्न मनी बाय गिविंग लोन्स टू पीपल, तो इट विल बी यस सर। इंक्लूडेड। ठीक है, तो इंडिविजुअल देख के कुछ बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड, इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज बैंक उस पैसे को यूज कर रहा है आगे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट फर्म इंक्लूडेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म इंक्लूडेड। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार, नो सर। बिकॉज कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है। यस सर। सेम सारी एंट्री सेम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, फॉरेन कंपनी है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया होगा, इट विल बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ लोन ओनली, जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, तो कई बार स्टॉक्स के बदले वो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। उसका फायदा ये होता है, बीएसटी का पार्ट है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। सी जब आप किसी कंपनी का स्टॉक लेते हो, रिलायंस का, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, जीरो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिबेंचर्स इज लाइक अ लोन दैट यू गिव टू द कंपनी, तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, तो उसका रिस्क कम हो जाता है। ओके सर। इट विल बी इंक्लूडेड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट और expenditure on construction of a house or expenditure on adding a floor to a building, So it will be included because वो नया ऐड हुआ है। capital formation. Now ये important है, अगर आपको ये एंट्री आ जाएगी ना, expenditure on repairs of fixed asset, then it will not be included because कोई भी, it's like एक घर था, मैंने उसका रिपेयर कराया, उसमें पेंट वेंट कराया, it will not be included because घर वही रहा, एक नया घर क्रिएट नहीं हुआ है, कोई कैपिटल फॉर्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट उसका रिपेयर कर दिया है, या मैंने दीवार ठीक करा दी, एक्सरसाइज कुछ भी अच्छा करा दिया। बट देन सर इम्प्रूवमेंट एंड उसमें क्या डिफरेंस हुआ? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि मैंने कुछ पार्ट ऐड कर दिया, लेट्स से मैंने घर के आगे कमरा डाल दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने रिपेयर नहीं कराया, मैंने घर पे फॉल सीलिंग करा, तो उससे उस घर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि मैंने कोई चीज ऐड कर दी है, उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। बट घर की दीवारें जो कि टूट रही थी या पुरानी हो रही थी, उसको रिपेयर करा दिया, कोई एग्जिस्टिंग मशीन थी जिसको मैंने ठीक करा दिया, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, ओके सर। स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी, सर नो। स्कॉलरशिप है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, देखो एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट नॉट इंक्लूडेड, ऑल्दो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा है क्योंकि स्कॉलरशिप वर्ड आ गया ना, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड। यस। ठीक है, बट अभी एक्सपेंडिचर वाला देखेंगे। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव बाय शेयर होल्डर्स, नो, बिकॉज वो आपको पेपर क्लेम है, कुछ बस ओनरशिप है। पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट, यस इट इज सर इट विल इंक्लूडेड। बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग, मेंटेनेंस, थिंक अभी बताया था मैंने, सर मेंटेनेंस इज लाइक रिपेयर ओनली ना? exactly, so it is So it intermediate will, consumption, it will yes not sir, be it will not not be be included. Payment of interest on borrowing by general government, general government, this is the other name for national debt interest or interest on public debt, it will not be included because it means that government has borrowed for consumption purpose. Okay sir. Yeah, family members working free on farm owned by a family, So it will be because production yes, हो रही है। यस, इम्प्यूटेड वैल्यू प्रोडक्शन हो रही है, और अब मेरी सर्विसेज के रिटर्न में मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे, बट मेरी सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही ना, यस सर। वही वाला है। ठीक है, तो इट विल बी इंक्लूडेड। पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म, यस, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट बनता है। परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर, यस, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। समझ आ रहा है ना? यस सर।
ठीक है, 4-5 और रहेगी बस. एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय अ फार्मर. So no, because it would be intermediate good. इट विल बी इंटरमीडिएट गुड. यस, लेकिन अगर वो बोलता कि फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है तब ये हो जाता, बिकॉज तब कैपिटल फॉर्म हो जाता. Yes, sir. आई थिंक आपको एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था ना उस दिन, तो आपने पूछा तो था. टैक्सी वाला आया था, टैक्सी ड्राइवर. हाँ हाँ ठीक है. परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म. अब एक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, बिकॉज 1 साल से ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट हो गया. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली. यस, आपकी स्कूल फी, ट्यूशन फी भरना, इट विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पेमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है. पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल. थिंक, ये पुलिस ऑफिसर के पेट्रोल वाला, पुलिस व्हीकल की पेट्रोल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. Then sir नहीं होगा. नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है. बिकॉज स्कूल का फाइनल प्रोडक्ट इज टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज. स्कूल वाले जो आपसे फी लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके बच्चों को बिजली, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एसी प्रोवाइड करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो द एंड प्रोडक्ट इज एजुकेशनल सर्विसेज. उसकी फी आती है और ये उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट है. बिल्डिंग को मेंटेन करना, टीचर को सैलरी पे करना जो है, और बिजली का बिल भरना, payment of excise duty by a firm. Excise duty is a tax not included. Now, festival gifts from an employer. दिवाली पे गिफ्ट मिलना. सर ये इंक्लूड नहीं होगा. एग्जैक्टली, क्योंकि ये गिफ्ट आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने परफॉर्मेंस करी है या आपने सर्विस दी है. दिवाली पे गिफ्ट मिले, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है, बोनस मिलता है तो इंक्लूड होता है क्योंकि वो आपने अच्छा काम करा है. सर्विसेज प्रोवाइड हाँ करी है. एग्जैक्टली, गिफ्ट सबको मिलता है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉइज. So it Employee would word be है. included. So it would be included. नहीं, एम्प्लॉय अच्छा, वर्ड है. employers होना चाहिए सर, तो नहीं इंक्लूड होगा. एम्प्लॉयर हो. हाँ देखा, मैंने बोला था कंफ्यूज करने के लिए आएगा. एम्प्लॉयर का आएगा, एम्प्लॉय का नहीं आएगा. खत्म क्या? हाँ खत्म. डन डन डन. ओके, सो वी आर डन विद दीज एंट्रीज. अभी done with आपको क्या national करना है? income finally.